friends. I welcome you to this interactive session, Discourse by Acharya Shri. At the outset, as a token of our appreciation, I request the Vice Chancellor to present a bouquet to Acharya Shri. Acharya Sudarshan Ji Maharaj is an eloquent orator with an enormous experience in the field of education. Acharya Shri has gained enormous knowledge through books and practical experience. Acharya Shri has worked in the field of education for over 47 years and has founded over 40 schools both in India and abroad. He has written books on the subject Methods of Life in 6 parts for different genera of students. The unique method has found acceptance in Singapore and Malaysia, and thereafter Methods of Life Private Limited has been established in Singapore. In the course of his spiritual journey, Acharya Shri has founded the Atma Kalyan Kendra, which proposes a parallel thought of self-welfare. The Atma Kalyan Kendra is located at Badshapur in Gurgaon. It is a symbol of Acharya Shri's purity and aims to spread the message of humanity and magnanimity so as to dispel ignorance, vanity, superstition, and immorality. The growing intolerance among youth, their inability to adjust, coupled with materialistic attitude, are prime reasons why many elders found themselves abandoned. Acharya Shri has set up a Sudarshan Dham, an age-old home in Gurgaon for such unfortunate elderly people. On account of the rising costs of medicines, Acharya Shri has taken various initiatives to provide medical aid to the needy, such as free cataract operation camp, blood tests, blanket distribution for elders and destitutes. Under the aegis of Atma Kalyan Kendra, Hame Bhi Padhao program is also been run free of cost by Acharya Shri throughout India for people who do not have access to education. As a nature lover, Acharya Shri's love for environment needs no emphasis. He has written numerous books on the subject. To acknowledge the exhaustive contribution of Acharya Shri, Times of India has published his biography, Sudarshan. The book has been released by Honorable Speaker of Lok Sabha, Mrs. Meera Kumar. I now request Acharya Shri to kindly give us his discourse. Thank you. माननीय वाइस चांसलर साहब, फैकल्टी मेंबर्स और गोवा विश्वविद्यालय के जितने भी अधिकारी हैं, सब लोगों को मैं अपनी शुभकामना देता हूं। गोवा विश्वविद्यालय ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं वाइस चांसलर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दरअसल मेरी यात्रा शिक्षा की यात्रा है और शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 52 साल से मैं काम कर रहा हूं। देश में विदेश में सभी जगह मैं गया। आपको हिंदी समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? देश विदेश में मैं सभी जगह गया और आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या मुझे दिखी, साउथ अफ्रीका में डरबन में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जहां मैं भी था। उसमें 60 कंट्रीज के लोग पार्टिसिपेंट थे। वहां तमाम लोगों के मन में एक ही विचार, आजकल के युग में लोग इतने तनावग्रस्त कैसे हो गए, इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, इतनी चिंताएं, क्या हो गया है मनुष्य को?
केवल भारत में नहीं, विदेशों में जाकर, जिसे हम बहुत प्रगतिशील मानते हैं, बड़े ही उन्नत लोग हैं। हमारे देश में भी उन्नति कम नहीं हुई, मतलब काफी हुए। इलेक्ट्रिक के पोल्स के हुए, बड़े बड़े मॉल्स बने, बड़े बड़े मकान बने, कॉलोनी बनी, लेकिन कॉलोनी में रहने वाला जो व्यक्ति है वह बीमार पैदा हुआ। आज चिंता केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में यह चिंता हो रही है कि लोगों को प्रसन्न कैसे रखा जाए। तमाम क्षेत्र में जहां जहां आप जाकर देखेंगे, तनावग्रस्त लोग आपको खड़े दिखाई देंगे। घर से लोग निकलते हैं तो पता नहीं, सड़कों पर चलते हुए तमाम लोगों को जब आप देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि क्या हो रहा है, यह व्यक्ति, इस व्यक्ति की खुशी गई कहां, इसके चेहरे की मुस्कान कहां चली गई। अभी हम आ रहे थे, माननीय भाई सांसद साहब के साथ, एक फोटोग्राफर ने कहा कि स्माइल प्लीज। If 5 minutes a smile can make your photograph beautiful, what about when you smile always to make your life beautiful? अगर हम 5 मिनट के मुस्कान से फोटोग्राफ को अच्छा बना सकते हैं, तो अगर 5 मिनट हम मुस्कालें, स्माइलिंग हो जाए हमारा, तो कितना आनंद आ जाए। हमारा यह जीवन, अब तो विज्ञान ने भी खोज कर आपको निकाल दिया गॉड पार्टिकल्स। हम लोग प्राचीन काल से कहते रहे ये संसार में गॉड पार्टिकल्स तो है। अभी आइंस्टीन ने कहा, आइंस्टीन ने खोज की और अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज हुई। खोज करते 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 जब परमाणु के निकट पहुंचे आइंस्टीन, तो परमाणु को तोड़ा गया, तो जो पदार्थ निकला उसका नाम था क्वांटा। उसको क्वांटा कहा गया। लोगों ने पूछा आइंस्टीन से, इस क्वांटा को अगर हम तोड़ेंगे तब क्या निकलेगा? आइंस्टीन ने कहा दिया, वी डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। देयर इज सम सुपर पावर हु कंट्रोल्स द एंटायर यूनिवर्स। इस चीज को जब हम जानते हैं, जब परमात्मा के हम अंश हैं, तो फिर चिंता क्यों करते हैं? क्या हमारी चिंता से कोई समस्या का समाधान हो जाएगा किसी चिंता करने से? आप देखें, सुबह में सोकर उठते, मैं मेथड्स ऑफ लाइफ की बात केवल इसलिए करना चाहता हूं कि मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता रहा हूं और मैं अपने को मानता हूं कि आई एम प्राउडेस्ट टीचर एवर बॉर्न। मैं जीवन में शिक्षक पैदा हुआ और शिक्षक के रूप में ही जाना चाहता हूं। मैं मेथड्स ऑफ लाइफ की बात करना, क्यों आप इतना अर्जन कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतने धन, इतने पैसे, एवरीबॉडी इज हैंकरिंग आफ्टर मनी। कितना पैसा चाहिए एक आदमी को परवरिश करने के लिए? हमारे स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो तुम्हारी आवश्यकता है उतना अगर तुम्हारे पास है तो ठीक है, वह पुण्य है। इसके अतिरिक्त अगर तुम्हारे पास कुछ है तो वह पाप है। स्टोर करो। आपको अंदाज करे 10 करोड़ रुपया कोई दे दे, अभी क्या करेंगे? प्रॉब्लम हो जाएगा, रात में नींद नहीं आएगी। अभी रात में खूब आराम से सोते हैं, तकिया लगा लेते हैं, सोते हैं, गेट खुला हुआ है कि बंद है उसकी भी चिंता नहीं। लेकिन अगर कोई 1 लाख, 2 लाख, 25 लाख रुपया अगर आपको दे दे, कहे कि भाई साहब इसको रखे रहना, कल मैं ले जाऊंगा, रात भर आप नहीं सोएंगे। एक पैसा आकर आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया,
सारे रिलेशन टूटते चले जा रहे हैं। केवल पैसा के आ जाने से सारा रिलेशन टूट गया। हमारे इसी गोवा की भूमि में लोग रहा करते थे पहले, जहां लोग गाते थे कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, यह भारत देश है मेरा। पर आज हम लोग इतने पराश्रित होते चले जा रहे हैं। सुबह में आप जगते हैं, आप कल्पना करें क्या करते हैं आप। एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे यहां जब मैं आया कल, तो मुझे एक आदमी ने बताया कि मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो भाई, तो मैं फिनेंशियल मैनेजर हूं, मैं आपके फिनांस का मैनेज करता हूं। एडवाइज बैंक्स में होते हैं फिनेंशियल जो व्यवस्था आप लोग करते हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप हमारे फिनांस के बारे में इतना चिंता कर रहे हैं, आपने मैनेज कर लिया कि आप अपने अपने जीवन को मैनेज कर लिया। कभी कल्पना करें कितनी कीमती आपकी जिंदगी है, एक एक पल आपका जीवन का बहुमूल्य है। कभी आपने सोचा नहीं इस पर। यू आर वरीड अबाउट अदर्स, आप हमेशा दूसरे के बारे में चिंता करते रहे, अपने बारे में थोड़ा सोचा करिए। 5 मिनट बैठिए। अब सुबह के समय आप घर से निकलते हैं, आप देखें, कल्पना करते चले, घर से निकलते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल जिस चीज से भी चलते हो, आप किस टेंशन में निकल रहे हैं घर से। सोकर उठे, 5 मिनट चाय पीने में देर हो गई, नौकर ने आपको चाय नहीं दी या पत्नी ने नहीं दी, आप तनाव में चले गए, क्रोध में आ गए, एंगर हो गए, और उसी तनाव को लेकर आप ऑफिस चल रहे हैं। कल्पना करें, ऑफिस जा रहे हैं, जाते ही आप वहां अमुक व्यक्ति से जहां जहां लोगों से भेंट होगी सबसे आप टकरा जाएंगे। पूरा टेंशन का वातावरण आपके चलते, फिर आपके चपरासी आपसे पूछेगा कि साहब का मूड कैसा है। अरे मूड को क्या हो गया, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, अपने यह हंसते हुए चेहरे को आपने नष्ट कर दिया। यू हैव नो राइट टू शो योर अगली फेस टू एनीबॉडी। आपने अपने को कुरूप बना लिया। कितनी अच्छी मुस्कान थी, कितने मुस्कुराते थे, गीत गाते थे। अरे जिंदगी ऐसे जियो कि उसका कोई मकसद हो। हम लोग जीवन जी रहे हैं, केवल जी रहे हैं, ढो रहे हैं। एक एक पल हमारा यूं ही बीतता जा रहा है। कल्पना करें, एक क्षण आप आईना देखते हैं, आईना में जो चेहरा देखते हैं वह भी भूतकाल का चेहरा होता है आपका। आईना वर्तमान नहीं होता है, क्योंकि जाती है रोशनी, आईना पर पड़ती है, जब रिएक्शन आता है तो तक एक पल बीत गया रहता है। आप तो हमेशा अतीत में जी रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अतीत के प्रॉब्लम से परेशान हो रहा है। इतने प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर लिया है। तो मैं तो इसीलिए कहता हूं कि योर प्रॉब्लम इज नॉट दैट योर प्रॉब्लम, योर रिएक्शन इज द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम से रिएक्ट कैसे करते हैं। सुबह में हम लोग जगते हैं, अगर थोड़ा कल्पना करें, और मैं तो आपसे कहने आया हूं यहां माननीय ऑनरेबल भाई चांसलर साहब के सामने, साक्षी मान के मैं कहूंगा, सुबह का 1 घंटा समय मुझे आप दे दें। 24 घंटा आपके हाथ में है, 1 घंटा समय मुझे दे दें। मैं तो डीडी पर भी आता हूं, अभी चल रहा है, सुबह 8:20 पर शायद डीडी पर आता है। 23 घंटा समय आपको अपना बच जाता है। 1 घंटा अपने लिए जिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो अहंकार है बड़ा आदमी होने का, वह आपको ऐसा करने नहीं देगा। एक शब्द है ईगो, ईगो शब्द आता है। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप को नष्ट करने के लिए ईगो काफी है।
मैं आप तमाम मित्रों से कहना चाहता हूं, रिमूव ई फ्रॉम गो एंड कीप गोइंग। अब ई को हटा दें, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। सुबह के समय जब आप 1 घंटा अपने लिए करें, थोड़ा आंख बंद करें, थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा गीत गाएं। मुझे याद है मेरे आश्रम गुड़गांव में बहुत लोग आते हैं एल्डरली, जो घर के स्टेपनी हो गए हैं, बुजुर्ग लोग स्टेपनी हो गए, धीरे धीरे उनकी आवश्यकता अब नहीं रही, घर में स्टेपनी होते चले जा रहे हैं। कई लोग आते हैं वहां हताश होकर। मैं उन्हें कहता हूं कि तुम गाना सीखो, डांस करो, गीत गाओ, मुस्कुराओ, देखो कि कितना जीवन में आनंद आ जाता। आज तक कभी नहीं किया आपने, कभी नाचा नहीं, कभी गीत नहीं गाया, तो मरुभूमि में गुलाब का पेड़ नहीं उगता है। आपने अपने जीवन को डेजर्ट बना लिया है। घर पर जाते हैं 5 मिनट, आप कभी कल्पना करके देखें, आपके छोटे छोटे बच्चे आपके इंतजार कर रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, मां आ रही है, और आप इतने तनाव लेकर ऑफिस से जा रहे हैं, टेंशन में। वहां भी जाते हैं तो अपने घर में पत्नी के सामने भी आप ऑफिसर बन के बिहेव करते हैं, वहां भी अफसर हैं आप। बच्चे डर से आपके पास आते नहीं हैं, फिर बच्चों को बाप कहां से मिलेगा जी? बच्चे आपके तनाव में, आपके तनाव को देखकर डूबके हुए हैं सोफा सेट के बगल में, उसको बाप चाहिए, ही नीड्स फादर। कहां है बाप? बाप तो टेंशन में बैठा हुआ है। पत्नी इंतजार कर रही है घर में, मेरे पति आ रहे हैं आज ऑफिस से, आज मुझे सिनेमा देखने जाना है, मुझे होटल में खाना खाने जाना है, और आप इतना टेंशन में घर में प्रवेश कर रहे हैं कि बेचारी सहम के सोफा सेट पर दुबक गई। क्या बोले आपसे वो? क्या बोले? उसको भी मन में कुछ अरमान होता होगा, उसने अपने को सजा संवार के रखा है कि पति जी आ रहे हैं घर में, हम लोग दोनों आदमी जाएंगे आज सिनेमा देखने। लेकिन आपने क्या कर लिया? ऑफिस का टेंशन आप घर में लिए, आपने घर को डिस्ट्रॉय कर दिया, कचरा घर बना दिया आपने। आपकी समस्या, दैट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम, आप ऑफिस में रखे, घर में आपने क्यों की? घर में भी आप किसी के बेटे हैं, आप किसी की पत्नी हैं, आप किसी के भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने। लेकिन एक ध्यान आप रखेंगे, आपका बिहेवियर, एक एक चीज काउंट हो रहा है। कोई कैमरा लेकर बैठा हुआ है आपके घर में, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जिनको आपने पैदा किया है। मुझे याद है एक सज्जन थे, पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे, बड़ा बिजी रहा करते थे, उनके पास समय की कमी थी, पैसा कमाना था ना। कभी ध्यान उन्होंने नहीं दिया। एक 6th क्लास में, 6th क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हमारे बच्चे भी हैं, उनकी भी कोई जवाबदेही है, उनको भी कुछ मदद करनी है, उनको भी प्यार चाहिए। उंगली पकड़ा के कभी फील्ड में नाचेंगे, गीत गावेंगे, मुस्कुराएंगे, कोई लोरी सुनावेंगे, गीत सुनावेंगे। उनको कभी सब, दोनों पैसा कमा रहे थे। संजोग से दोनों थके मादे एक दिन आए, अपने ड्राइंग रूम में बैठ गए, पति पत्नी दोनों डॉक्टर बैठ गए। फिर बच्चों को कहा कि गो होमवर्क करो। आजकल ऐसा ही कहा जाता है बच्चों को, जाओ उस कमरे में होमवर्क करो। क्यों देख रहे हो तुम, क्या कर बैठ रहे हो, हम लोग बात कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी दोनों एक कमरे में बैठ गए, बच्चा वहां जाकर होमवर्क करने लगा। अब अंदाज करें, छोटा बच्चा जो इतना एटम बम है, वो इतना एनर्जी से भरा हुआ, अरे आप तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम सिनेमा देखेंगे, टीवी देखेंगे। छोटे बच्चे को आपने कह दिया कि जाओ होमवर्क करो, संभव है क्या? वहां जाकर दोनों पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने खिड़की से देखा,
बाहर माता पिता ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, दोनों अपना शुरू हो गए बातचीत करते करते, एक दूसरे को पकड़ा। बेटे ने बेटी को, अपनी बहन को पकड़ा, बाल पकड़े हुआ था, एक आदमी उसको गर्दन पकड़े हुआ था, दोनों कुछ आवाज हुई जोर की, माता पिता बगल के कमरे से दौड़े, ये क्या कर रहे हो, व्हाई यू आर फाइटिंग? लड़के ने कहा कि पापा वी आर नॉट फाइटिंग, वी आर प्लेइंग मम्मी एंड डैडी। आप लोग जो करते हैं वही मैं भी कर रहा हूं। बस छोटे बच्चे आपके हैं, बड़ी जवाबदेही आपके सर पर आ गई है। कोई मजाक नहीं रहा, कोई हंसी खुशी का माहौल वातावरण नहीं रहा। छोटे बच्चों को हम एक्सपेक्ट करते हैं, आपके परमात्मा की कृपा से आपके घर में भी छोटे नन्हे मुन्ने हैं, थोड़ा उन्हें खेलने तो दीजिए। इतना डिप्रेशन में उनको आपने बना दिया, बैठे रहो, हिलो मत। एजुकेशन पैटर्न टोटल फेल कर गई है आजकल। आज क्लास में क्या हो रहा है, इतना तनाव पैदा हो जाता है क्लास में, ये टीचर को देख के मतलब है कि बच्चे सहम जाते हैं। जिन बच्चों को चर्पिंग होना चाहिए था, मुस्कान होना चाहिए था, खिलखिलाहट होनी चाहिए थी, बच्चे को हंसे हुए कितने दिन, आपको भी बहुत दिन हो जाता होगा हंसे हुए, पता नहीं कितने वर्षों से आपने हंसा ही नहीं। यह तनाव का वातावरण आज समाज में खाया जा रहा है। एक ही रास्ता है, हम प्रसन्न रहने का प्रयास करें। कठिनाई होगी, और बड़ा ही सहल तरीका, मैंने जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, डरबन में, तमाम जगह जाकर इन्हीं बातों की चर्चा की और कहा कि 5 मिनट हंसा करो, हंसो, ठहाका लगाओ, आप देखेंगे